Good morning, everybody. I am here with a special bulletin. As you all guys are aware of the present ongoing conditions of the country and especially at the Jantar Mantar, means you all guys are aware of the ongoing protest of the CJP party and the opposition, means the protest against the paper leaks of the NEET and also the various other paper leaks and the miseries of the common man. So yeah, CJP had launched a protest yesterday, which aimed at going to Sansad, and the Nara was Chalo Sansad. So during that protest, police had used brutality, means they had attacked the protestants, and also the other leaders of the CJP party were arrested, and most of the people who has visited Jantar Mantar had been injured, and most और एक हॉस्पिटल पुलिस हमारे साथ आतंकवादी वाला व्यवहार कर रही है, ठंडे से पीटा जा रहा है, लड़की लड़के सबको पीटा जा रहा है। इनकी तो लड़कियां गायब हुई है, सुबह में डिटेंशन ले गए, वो वहाँ पे बेहोश हो गई है, रो रही है। वो मांग कर रहे हैं आप लोग, इस तरीके से लाठी बरसा रहे हो। 80% आता था मैं 12th में, 80% से कम नहीं आया आज तक। 62 आए मेरे घर वाले थूक रहे थे मुझ पे। had injuries, means the police had used lathi charge, so nobody remained safe, and also the Nara, which named jail bharo, means the jails were getting filled. The police were first using the buses, and they are forced to just detain people, means they were detaining people on no grounds, means just on the protestant lines. So they were just detaining them in the beginning. So many of the people were detained, and after that, when they saw that the crowd is gathering more and more, they started lathi charge, and that damaged most of the students' emotions. And also the present government is going by on its own way, and they are not listening to any of the demands of the students. पुलिस वालों ने इतनी बुरी तरह मारा, देखो इधर, और इतना खून बह रहा है इनका कि पूछिए मत। पुलिस लाठी मार रही है, आपको वो दिख रहे होंगे। CJP party had announced in the morning that they will not go out of the Jantar Mantar, and that Jantar Mantar is their place, not of anybody's father, and they will remain there until Dharmendra Pradhan resigns, and also some are going for the resign for our dear Prime Minister Narendra Modi. इनका आरोप है कि बैरिकेडिंग में करंट लगा था। इनका आरोप है कि बैरिकेडिंग में करंट लगा था और कई प्रदर्शनकारियों को करंट का झटका लगा। इनका आरोप है, एक से ज्यादा प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बैरिकेडिंग में करंट लगा था। एक से ज्यादा प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बैरिकेडिंग में करंट लगा था। इस पर आपका क्या कहना है? मैडम आप हट जाइए, मैडम आप हट जाइए, पीछे हो जाइए, पीछे। आपका क्या कहना है? और कुछ भी नहीं रहा एक्चुअली मैम, इनके ना नेम प्लेट भी नहीं है, जिनके नेम प्लेट नहीं है ना, ये शिकायत कहीं जा रहे हैं। सिविल ड्रेस में आरएसएस के गुंडे भी यहाँ पे मिले। दिस इज व्हाट यू कॉल डेमोक्रेसी। इतनी गंदी तरीके हमें। And the brutality used by the central government by using their armed forces is intolerable, and also this is a very shameful act, because most of the country's influencers and the means the press were recording these clips, and now this act of the Indian government is on the official channel of the YouTube Global News. So this news has now spread over the world, and also the thumbnail of the video of the CJP protestant has got a logo that Modi must go now. So you guys are already aware how much defame our country is getting because of this shameful government and because of these shameful officers of them. So ये जो इन्होंने shameful act करा हैगा, इतना ज़्यादा मतलब कि बच्चों को इतना मारा हैगा, सबके सर तोड़ दिए, सबके टांगे सुझा दी। सो ये जो है नहीं सहा जाएगा भाई, बिल्कुल भी। तुमने सोचा था कि तुम लोग जो है थोड़ा बहुत बच्चों के साथ मार पिटाई कर लोगे, बच्चे जो है पीछे हट जाएंगे, बट तुमने जो है अभी सुबह सुबह देख लिया कि क्या होगा तुम्हारे साथ अगर तुम लोग ऐसे हाथापाई करोगे। सो जितनी तादाद कल थी बच्चों की, उतनी ही दोबारा से आ चुकी है जंतर मंतर पे, और फिर से नारे लगने शुरू हो गए हैं, मोदी मस्ट गो नाउ।
एंड धर्मेंद्र प्रधान शुड रिजाइन। सो ये वो आदमी है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। सरकार इसको पीछे अपने छुपा के बैठी है, गोदी में लेकर बैठी है इसको, ना तो इसके ऊपर कोई कार्यवाही हो रही है अभी तो, ना इसका कोई भी स्टेटमेंट आया है। सो तुम देख सकते हो कितना बेशरम मंत्री है हमारा एजुकेशन मिनिस्टर, ना तो खुद पढ़ा लिखा है ना तो दूसरों को पढ़ने लिखने देगा। सो ये वही सरकार है जिसमें आधे से ज्यादा लोग जो है नेता बने हुए हैं सारे गुंडे हैंगे। और तुमने ये बात जरूर सुनी होगी कि पुलिस वाला गुंडा हैगा, मतलब कि ये वही सरकार हैगी जिन्होंने पुलिस वाले गुंडे बना रखे हैं। सो ये जो है इनको घर की वर्दियों घर के कपड़ों में भेज देते हैं, उसके बाद बच्चों पे हाथापाई करते हैं, बच्चों के घर वाले आते हैं उनको मारते हैं। सो ये जो है बिल्कुल भी नहीं सहा जाएगा। आई स्टैंड विद the influencers who says they make a video and get this CJP protest viral over the country, over the world. So I stand with them and I don't vote for BJP from now onwards. And most of the people from our village had visited the CJP protest and most of them have not returned. So I wanted to tell one thing, that the police workers are just making the all people detained because of no grounds, because of the only ground that they were asking for their rights, and also they were protesting against the BJP government and this anti-Modi, so and this Modi government and the Dharmendra Pradhan. So this BJP is hiding Dharmendra Pradhan from getting any restrictions, and also Dharmendra Pradhan is living with all his comforts, and the students are fighting for their justice. And this fight is has not remained for the NEET students now onwards. This fight is now for the whole country, for the whole students who study and also who are appearing for the schools, who are in the colleges, who are appearing for any other government exam. This fight is for all of us now. And also I wanted to say one thing, that in the past few years many of the exams have leaked. Our Rahul Gandhi had made a video on this, that more than 50 or somewhat like these exams have leaked in the previous years, and these all exams are the major exams, means the SSC, CHSL. So the time is now coming nearer that the UPSC will also get one time the UPSC will also get leaked after some years, and then these Bhrashtacharis will get on the top of our head, and the authorities will also get corrupted. So अब वो समय नहीं आएगा भाई कि तुम अपने घर में बैठे हो सोच रहे हो कि हमारा कोई मतलब नहीं है इससे, हम तो नीट के स्टूडेंट्स हैं नहीं। सो मैं ये कहना चाहूँगा कि तुम लोग जरूर आओ भाई जंतर मंतर, और अगर नहीं आ सकते सो ऑनलाइन अपना पूरा सपोर्ट दो, क्योंकि ये बीजेपी गवर्नमेंट मोस्ट ऑफ द वीडियोस अब रिमूव करेगी। और सीजेपी का जो अब नया चैनल बनाएगा, जो बैकअप चैनल करा रहे हैं, उसको जरूर फॉलो करना, मैं ये जरूर कहूँगा, क्योंकि हमारी सीजेपी की सारी वीडियोस कट जाएंगी, चैनल भी डिलीट हो जाएगा, और हो सकता है वो इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने हमें सपोर्ट करा है इनके चैनल्स भी डिलीट हो जाएं। सो मैं एक बात जरूर कहूँगा कि ये तुम लोग बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हो। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि वो इन्फ्लुएंसर जो इस वक्त आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तुम लोग उनको बिल्कुल भी फॉलो मत करना, चाहे वो बॉलीवुड का कोई सुपरस्टार हो या फिर कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी इन्फ्लुएंसर हो फेसबुक इंस्टाग्राम का, क्योंकि ये वही बंदे हैंगे जब तुम मर भी जाओगे तब भी ये कुछ नहीं बोलेंगे, इनको बस अपना फ़ायदा चाहिए, अपने व्यूज़ चाहिए। सो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जितने भी बीजेपी के सपोर्टर्स बैठे हैं जो यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर बनके, हम इनको सपोर्ट नहीं करते और हम लोग मृत लोगों को वोट नहीं देंगे। मैं इतना बस जरूर कहूँगा कि अब बीजेपी को कोई वोट नहीं देगा हमारे गाँव में से, ना तो हम वोट देंगे ना तो आप वोट दीजिए, क्योंकि अब जिस तरह से इन्होंने दूसरे बच्चों को मारा है, मेरे भाइयों को मारा है, मेरे दोस्तों को मारा है, सो ये लोग वो दिन दूर नहीं आएगा कि ये आपके बच्चों के साथ भी ऐसा ही करेंगे। पहले उन्होंने किसानों को मारा था, अब ये लोग बच्चों को मार रहे हैं, थोड़े दिनों में आप भी मार खाओगे। इससे बेहतर है कि जाग जाओ, और ये गवर्नमेंट को हम लोग अब नहीं रहने देंगे। सो अगले इलेक्शन होते साथ ही गवर्नमेंट बाहर। और दूसरी बात, धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन लिए बिना नहीं जाएंगे जंतर मंतर पे से, और इसी तरह से वीडियोस जो है डलती रहेंगी अब। सो बीजेपी गवर्नमेंट चेतावनी है कि पहली और आखिरी कि बच्चों पे हाथ नहीं उठाना दोबारा से। और हाँ, अगर इस तरह से कोई भी प्रोटेस्ट होता है सो उसको दबाने की जरूरत नहीं है, अपने गुंडे भेजकर। ये जो तुमने बीजेपी के गुंडे भेज रखे थे इतने तगड़े तगड़े पुलिस वाले, सो ये सब वही थे जो कि नेताओं के पैर चाटते हैं और उनके हुक्म पे आ गए वहाँ पे लड़कियों को मारने के लिए, लड़कों को मारने के लिए। भाई मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें कि मैं वो क्लिप जरूर लगाता, पर वो क्लिप जो डिलीट हो चुकी है यूट्यूब से। मैं जो माउस से बता देता हूँ, ये मेल ऑफिसर्स, मेल पुलिस वाले लड़कियों को मार रहे हैं बाल पकड़ पकड़ के इतनी बुरी तरह। सो पहली बात तो इनको लड़कियों को छूने की इजाज़त नहीं है, और दूसरी बात ये जो गर्ल्स अपना बयान दे रही हैंगी
कि हमारे साथ बहुत बुरा करा है इन लोगों ने, वो सब कुछ सत्य रहेगा, मतलब सब कुछ सही है। और अभी जो है सुबह की अभिजीत दीपके सर की वीडियो आई थी जिसमें वो पुलिस वाले से बात कर रहे थे। सो उसमें वो पुलिस वाला बोल रहे हैं, मतलब कि SHO था या फिर कोई बड़ा अधिकारी था, वो बोल रहे हैं कि ये बस एक अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है लड़कियों के साथ। सो आई सपोर्ट CJP, आई सपोर्ट सोनम सर, एंड आई विल नॉट वोट टू द डेड, नो वोट टू द डेड गवर्नमेंट, एंड ऑल्सो वी डोंट वोट सच रूलर्स हु रूल अस लाइक साउथ कोरिया, एंड ऑल्सो these things had happened in the British government, and now I think that I am under slavery. Now I think that अब मैं गुलाम हूँ। और हाँ, एक और बात, अगर तुम लोग हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को ऐसे ही मारोगे, लातों से उनके सीने पे लाते रखोगे, सो ये बिल्कुल भी नहीं सहा जाएगा। और हाँ, याद रखना कि अभी एक पहला प्रोटेस्ट था, इसके बाद और भी प्रोटेस्ट होंगे और तुम्हें अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी।